Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where the plan for today is to take the subject of economics, chapter number 1, FYJC Maharashtra Board, basic concepts of economics, one step ahead. Okay, till last time हमने क्या डिस्कस किया है? वेल, इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स नेचुरल साइंस है कि सोशल साइंस है? इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहाँ से है और इकोनॉमिक्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो क्या होते हैं? ओके, डेफिनेशन भी हमने कवर अप कर लिया है, और लास्ट टाइम हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं. जो पहला कॉन्सेप्ट था जो हम सभी को इफेक्ट करता है वो है वांट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे और उसका क्लासिफिकेशन क्या था. ये हमने लास्ट टाइम कवर अप कर लिया है. आज मैं उन कॉन्सेप्ट्स के श्रृंखला को, लिस्ट को थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ. कुछ ऐसे चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे एक साथ में. ओके, क्योंकि जब मैं सिखाता हूँ तो एक तरीके से मैं भी सीख रहा हूँ. ओके, टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न. मे बी अभी नहीं, मे बी इन फ्यूचर आपको ये समझ में आ जाएगा. ओके, हमारे पहले कॉन्सेप्ट वांट के बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरे कौन से कॉन्सेप्ट है? देयर आर मल्टीपल. आपको जो पता होना चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से, उस पर हम चर्चा आने वाले में भी 10-15 मिनट में करने वाले हैं. ओके, अगला गुड्स एंड सर्विसेज. वेल, आपकी जो ज़रूरत होती है, जो पहला हमने डिस्कस किया, ओके, वो ज़रूरत को आप पूरा कैसे करते हो? अगर भूख लगी है, वो आपकी ज़रूरत है, आप जाके कोई चीज़ को खरीद लोगे दुकान से, तो उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? गुड्स. सिंपल सी बात है. ओके, तो गुड्स क्या होता है? किसी भी तरीके का प्रोडक्ट होता है. बट अगर आपकी ज़रूरत है, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, ओके, और आपको एक मसाज की ज़रूरत है, तो आप में भी कोई मसाज पार्लर में जाओगे, आपका अच्छा से कोई मसाज कराया जाएगा. वो गुड्स नहीं होता है, वो सर्विसेज होता है. आपको टैक्स की चिंता सता रही है कि मुझको कितना टैक्स देना है, मुझे इनकम टैक्स का इनविटेशन आया है. इनविटेशन आया मतलब रिमाइंडर आया है, तो ऑब्वियसली आप जाओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, आप उनके सजेशन को लोगे, उनके एडवाइस को लोगे, उनके सुझाव को लोगे. वो एक सर्विस होता है. तो वेरी सिंपल पुट, गुड्स क्या होता है? वेल, कोई भी दुकान में जाओ, बीच में दुकान में खड़े रह जाओ, 360 डिग्रीज 360 डिग्रीज आपके आसपास में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट दिखने वाला है, और वो प्रोडक्ट आपकी कोई ना कोई ज़रूरत को पूरा ज़रूर करेगा. वो गुड्स हो जाता है. और सर्विसेज क्या होते हैं? वेल, वो एक तरीके का आपके लिए किसी तरह की सेवा होती है. ओके,
फ्री का नहीं होता है। 99.99% इसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है उसके वैल्यू के हिसाब से। जब मैंने वैल्यू की चर्चा की, थोड़ा जाके वैल्यू आने वाला है। यूटिलिटी, आप गुड्स क्यों लेते हो, आप किसी से सर्विसेज की उम्मीद क्यों करते हो? क्योंकि वो आपको किसी तरीके से एक यूटिलिटी देता है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस, मेरी जरूरत को संतुष्ट करने की जो क्षमता है। हिंदी थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर आप ऊपर पढ़ो, कमोडिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी of a commodity to satisfy human wants or want satisfying power of a commodity। मैंने वो बस हिंदी में आपको बताया। ओके, अगर मेरी कुछ जरूरत है, भूख लगी है, भूख मिटाना है, तो कुछ मैं खाऊंगा या कुछ मैं पीऊंगा, जिसकी वजह से प्यास मेरी बुझ जाएगी, भूख मेरी मिट जाएगी। तो वो जो मेरी भूख मिट गई है, तो वो जो चीज मैंने जिसका सेवन किया, जिसको मैंने खाया, वो मेरे भूख को मिटाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। पानी मेरे प्यास को बुझाने की क्षमता रखता है। उसको, उस कैपेबिलिटी को, उस कैपेसिटी को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। तो आप गुड्स क्यों खरीदते हो? क्योंकि उस गुड्स में यूटिलिटी होती है। आप किसी से सर्विसेज क्यों लेते हो? क्योंकि उनके सर्विसेज में यूटिलिटी होती है। ये यूटिलिटी पर काफी इन डेप्थ माइक्रोस्कोप के अंदर घुस के चर्चा हम आने वाले लेक्चर में नहीं, आने वाले साल में करेंगे, क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी के सिलेबस में नहीं, बट अगले सिलेबस में आपके लिए रखी गई है। ओके, इसके बाद वैल्यू, ये क्या है? ये आज हमारा लास्ट का टॉपिक है। सिंपल सी बात है, लेक्चर्स को बहुत लंबे नहीं रखे जा रहे, सिंपल रखा जा रहा है ताकि आपको झट 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 इसकी सीख दी जा सके। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कीमत, बराबर। हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। हाँ, अभी आपको ये वैल्यू में 3 टाइप्स समझने पड़ेंगे। पहली बात तो क्या लिखा गया है? वैल्यू के 2 नजरिए हैं। एक होता है वैल्यू इन यूज, एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। मतलब देखिए, हर चीज की कोई ना कोई कीमत है, बट किसी की वैल्यू इन यूज बहुत हाई होती है और किसी का वैल्यू इन एक्सचेंज, अदला बदली, बहुत हाई होता है। और कुछ चीजें पैराडॉक्स होती है। अब ये पैराडॉक्स का मतलब क्या है, ये आगे जाके मैं आपको समझाता हूं। तो वैल्यू को 2 नजरिए से देखा जा सकता है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपके घर में आपकी मम्मी है, आप उनको देख रहे हो, तो आप मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि ये तो मेरी मदर है। बट अगर आपके पिता देखेंगे, वो थोड़ी मम्मी की नजर से देखेंगे, बोलेंगे ये तो मेरी धर्म पत्नी है। हाँ देखो भाई, है वही इंसान, ओके, बट somebody इज लुकिंग, नजरिया, थिंकिंग का प्रोसेस, दिस इज माई मदर। उनके भाई बोलेंगे दिस इज माई सिस्टर, उनके पापा मम्मी बोलेंगे ये तो मेरी बेटी है। इट्स द सेम। जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो, बैट्समैन वही है, बॉलर वही है, क्रिकेट का पिच वही है, बट जो प्लेयर जिस पोजीशन पे खड़ा है उस पोजीशन से वो फील्डिंग करेगा, वो एंटिसिपेट करेगा कि बॉल मेरी किस दिशा में आने वाला है। तो उसी तरह से वैल्यू का मतलब एक ही होता है, बट वैल्यू इन यूज अलग होता है और वैल्यू इन एक्सचेंज अलग होता है। धूप, सनलाइट, उसका वैल्यू इन यूज, धूप का वैल्यू, कीमत बहुत हाई है। विदाउट सनलाइट कैन वी स्टे इवन फॉर 1 डे? देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे धूप कुछ दिनों तक नहीं निकलती, क्योंकि इतनी ठंडी है वहां पर, ओके, इतनी सर्दी है वहां पर। हाँ, बट इसके लिए वहां पर नॉर्मल वेजिटेशन, मतलब क्या है, नॉर्मल जो पौधे रहते हैं वो उग नहीं पाते, क्योंकि धूप इज वेरी वेरी, सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द प्लांट लाइफ, नॉट जस्ट फॉर द एनिमल लाइफ, बट इवन फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए भी जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो कभी आपने नोटिस किया है सर्दियों में थोड़ी धूप अगर कहाँ कोने से आएगी ना, लोग जाके वहाँ पर बैठ जाते हैं। क्यों? बोला थोड़ा गर्मी लग रहा है भाई, बहुत ज़रूरी है मुझको। हाँ, तो वैल्यू इन यूज उसका बहुत हाई है, बट
वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। वैल्यू इन एक्सचेंज किसका होता है? अगर आपके पास मोबाइल है तो वो आपको वैल्यू इन एक्सचेंज देता है, अगर आपके पास में गाड़ी है वो आपको वैल्यू इन एक्सचेंज देता है, अगर आपके पास में घड़ी है वो आपको वैल्यू इन एक्सचेंज देता है। इस पे थोड़ी ज्यादा चर्चा हम अभी आगे करते हैं। तो वैल्यू के अंदर वैल्यू इन यूज किसे कहा जाता है? देख भाई, कुछ ऐसी चीज, ओके, जैसे धूप है, सनलाइट है, जैसे हवा है, बराबर, क्योंकि जैसे ही एक स्पेसशिप ग्राउंड से जब उसका लॉन्च होता है, बराबर, वो एटमॉस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वो पार कर करके एक ऐसे पोजीशन पे स्पेस में पहुंचता है जहां पर नॉर्मल सांस नहीं ली जा सकती है। सो यू कैंट स्टे देयर विदाउट अ मास्क, विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई। बट जमीन पर यू टेक एयर फॉर ग्रांटेड, यू टेक ऑक्सीजन फॉर ग्रांटेड, हम बड़े हल्के में ले लेते हैं। बट उसके बगैर मैं नहीं बोलूंगा 1 घंटा या 1 मिनट नहीं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है जो हमारे वातावरण में, हमारे एयर में, हवा में उपलब्ध है, ओके, हमें उसकी कीमत समझती है, क्योंकि उसके बगैर जीना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। विदाउट सनलाइट पशु पक्षियों का, वृक्ष का, झाड़ जो पौधे होते हैं उनका, और हमारा जीना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ों का जो वैल्यू इन यूज़ है वो बहुत हाई होता है। बट वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होता। इसके लिए हम पैसे देते नहीं हैं, इसके लिए हम इनको हल्के में लेते हैं। बट द मोमेंट हम जिस चीज़ को एक्सचेंज कर सके, पुराना मोबाइल है, दूंगा तो मुझे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा नया मोबाइल के लिए, पुरानी गाड़ी है, दूंगा तो नए वाले गाड़ी के लिए अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें होती है जिनका वैल्यू इन एक्सचेंज है, मैं इस दूसरे किसी के साथ में इसका एक्सचेंज कर सकता हूँ। इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ another commodity, बदली आप कर सकते हो। When this value is expressed in terms of money, it is called as the price of the commodity. A commodity which commands a price is termed as an economic good. So I do repeat myself. ऊपर जो मैंने सनलाइट की बात की, जो मैंने एयर की बात की, इनको कहा जाता है फ्री गुड्स। फ्री गुड्स, क्योंकि पैसे का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। बट जब मोबाइल की बात कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं, गाड़ी की बात कर रहा हूं, तो ये सारे फ्री नहीं है। आप इनको एक्सचेंज में पाने के लिए पैसा, क्योंकि इनका वैल्यू मनी में है, तो आपको मनी का भुगतान, पैसों का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए इनको कहा जाता है इकोनॉमिक गुड। सो आई रिपीट माई सेल्फ, फ्री का मिल गया, वैल्यू बहुत है, फ्री का मिल गया, फ्री गुड। बट वैल्यू है और उसका आपको एक्सचेंज में पैसा देना पड़ता है, वो बन गया इकोनॉमिक गुड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन exchange. The last thing as far as value is concerned, something which is very opposite. Opposite का मतलब क्या है? एक चीज यहाँ पर, एक थिंकिंग यहाँ पर है, दूसरी थिंकिंग यहाँ पर है। इतना फर्क क्यों है? इसको हम क्या कहते हैं? वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। वेरी सिंपल। वेल, आई ट्राई टू मेक इट सिंपल। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान कहे मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप तो या तो बोलोगे यार थोड़ा सनकी लगता है, पहले बोलता है कि सब कुछ है तो उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, बट मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। या तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है या तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, या तो दोनों करेक्ट नहीं है, इसी का थोड़ा पेज ढीला है। देखो भाई, वो ऐसा कह सकता है कि मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, बट प्यार करने के लिए परिवार नहीं है, उसके लिए वो बोल रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है। बट इस तरह के पैराडॉक्स को, पैराडॉक्स मतलब फुल एंड एम्प्टी, ये कैसे हो सकता है? ओके, रिच एंड एट द सेम टाइम पुअर, ये कैसे हो सकता है? दैट्स कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स। एकदम ऑपोजिट सिचुएशंस, सेम जगह पर ऑपोजिट सिचुएशंस। तो वैल्यू जब डिस्कस होता है तो ये वाटर डायमंड क्या कहा जाता है? पैराडॉक्स को काफी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। वाटर क्यों? देखिए भाई, वाटर का जो वैल्यू है
in use, it's very high. Can any one of us live without water? एक तरीके से पॉसिबल भी है कि अगर आपको मजबूरी से खाना ना मिले तो 2-3 मे बी 4-5 दिन मे बी आप बिना खाने के निकाल लोगे, बट विदाउट वाटर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। एक दिन से ज़्यादा आपकी गाड़ी जा पाएगी। ओके, यू विल ऑब्वियसली फेंट, क्योंकि आपके शरीर को सबसे इम्पॉर्टेंट पानी की तो ज़रूरत है ही जिंदा रहने के लिए। सो द वैल्यू ऑफ वाटर इज वेरी हाई, वेरी हाई, बट द वैल्यू इन एक्सचेंज ये काफ़ी लो हो जाता है पानी का, क्योंकि पानी को हीरे की कीमत जैसा बेचा नहीं जाता। हीरे का वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत हाई है, बट वैल्यू इन यूज ना नेक्स्ट टू बराबर। लोग अपने शौक के लिए हीरा खरीदते हैं, बराबर, उसकी जरूरत जीने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विदाउट हीरा, विदाउट हीरे के खरीदने से आप जी सकते हो, बढ़िया जीवन जी सकते हो, पूरा जीवन जी सकते हो, बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। तो द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, जिस संसार में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ऐसा पैराडॉक्स है कि कुछ चीजें ऐसी है जिसका वैल्यू इन यूज, उपयोग का वैल्यू बहुत हाई है, बट एक्सचेंज में हम कभी सोचते भी नहीं है। फ्री का मिल गया रे हमको, ओके, धूप छाव फ्री का मिल गया हमको, हमको जो हवा है शुद्ध हवा फ्री का मिल गया हमको, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होता। बट वही चीज जब हम हीरे की बात करें या कुछ ऐसी चीजें जो बहुत कीमती होती है, सोना, सोना से क्या तुम खा सकते हो? बिल्कुल नहीं, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत हाई रहता है। ये इस तरीके का दुनिया हम जैसे इंसानों ने बना लिया है, जहाँ पे इस तरीके का पैराडॉक्स होता है कि कोई चीज जो इतना उपयोगी है उसका एक्सचेंज वैल्यू तो होना चाहिए ना के बराबर। कोई चीज जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत है बट वो कोई इन यूज का वैल्यू रखता नहीं है। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ पैराडॉक्स, ऑपोजिट थिंग, एक्सट्रीम ऑपोजिट थिंग्स एग्जिस्ट इन द सेम वर्ल्ड। तो आई होप आज का जो लेक्चर था, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होता है, वैल्यू और वैल्यू के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्या होते हैं, वो आपको सारा समझ में आ गया। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्या दोस्तों तक हमारे चैनल की जानकारी ज़रूर पहुंचाइए। अगर आप यहाँ पर नए हो, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपना और अपने बड़ों का और अपने छोटों का और अपने परिवार वालों का सभी का ख्याल ज़रूर रखें। ये लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी नहीं, अगले लेक्चर में उसका अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पर हम 11 से लेके 15 तक सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई, सारे स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ पर हम ज़रूर करते हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। अपना ख्याल ज़रूर रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।